Okay. So guys, in this session, we are going to learn about the lines and angles and triangle. So our chapter name will be, and both of you will follow Arsala, right? Yes. Lines, angles, and triangles. Both of you can see the board? Both of you can see the board? Yes, sir. Sana, can you see the board? Yes, sir, I can. Okay, fine. So here I would like to tell you something in this. First of all, okay, before starting the our main topic, what do you know about the angle? What does it mean actually? What do you know about the angles? Any idea, Anika? It's it's the measurement of the space between two lines. Yes, it's a measurement of angle, measurement of degree, you can say, or you can say the measurement of spaces, you can say how much it moves between the two lines, you can say, right? I will just one image and I will just show you right now here what it is exactly. Okay, so I'm just going to upload it so you can see it easily. Okay guys, so both of you can see this picture. Yes, Yes. sir. Okay, so in this picture you can see here one line is this OA, right? OA, I will use my pointer to show you. One line is OA and the another line is OB. So this movement from, suppose this is the, I think you know the x-axis, right? So इसको अगर x-axis मान लो तो ये कितना degree move किया, that is called as angle, right? और इसको measure कैसे करेंगे हम? क्या तरीका है measure करने का अगर नहीं पता कितना डिग्री है तो? Protractor. प्रोजेक्टर रखेंगे. प्रोजेक्टर कैसे रखेंगे, कुछ पता है? Yes, sir. You keep it at the point O. Okay, any other? Okay, you will keep. Okay, just give a second, give me a moment. Image. Uh-huh. Just give me a moment, guys. So I'm just going to take one example here and I will take out this. So just taking it here, copy, and you can see this is your protector, right? Correct? Yes, sir. Okay. I think I should take this one in the next page. That would be better here. Okay. So this is our protector. Can you see, Sana? Yes. So you can see here they have used the two lines. If you can see here, you can consider this is OA and this is OB. I will write down on the whiteboard. Okay, so you can consider this is O, this is A, this is B. So you can see how they have put this center on the line joining point. You can see here also they have put we have the joining line, right? So हम वहां पे प्रोटेक्टर का जीरो रख देंगे, right? प्रोटेक्टर का जीरो रखने के बाद क्या हो जाएगा, तो हमें एक एंगल मिलना शुरू हो जाएगा जिधर लाइन जा रही है. अब देखो ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, एंड आई थिंक आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, राइट? सना, अनिका, बोथ ऑफ यू नो दैट? Yes, sir. हाँ, तो चलो इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. आप लोगों को मालूम है ना मेजर कैसे करते हैं? हाँ, sir. ओके, चलो ठीक है, गुड. अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. दो चीजें आती हैं, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट रिप्रेजेंट यू राइट नाउ. देखो मैं एक चीज बनाने जा रहा हूँ. कैन यू सी these two lines? Can you see these two lines? Yes, sir. So the angle which is inside of it, the angle
which is inside of it, that we called as interior angle, जो दो lines के अंदर में बनेगा, right? And if you see here, I'm just going to draw the another part of it. ये line के outer में बन रहा है, outer side, inside नहीं, outer side बन रहा है. So that what we call this one as, this angle will represent as exterior angle. Do you clear with this, Sana? Yes, sir. What is exterior angle and what is interior angle? Do you understand? जो दो लाइनों के Yes, sir. अंदर में बनेगा, that we call as interior angle. और जो दो लाइनों के बाहर में, मतलब बाहर साइड से जो सर्कल बनाता हुआ देख रहे हैं आप, I have drawn in the orange color, that we called as Exterior angle. exterior angle. Do you know relation between interior and exterior? They together form a 360. Right. Why do it makes a 360? Because the whole circle, a one circle will give me 360-degree angle, right? So if you see here, I'm just taking the example. Suppose that I will take this angle as 60-degree. So what will happen to 300. this part will give me how much? 300. 300, right? So you know about it, right? So Yeah. we can write down a relationship here. We can write down a relationship here. Exterior angle is equal to 360-degree minus interior angle. Can we make this relationship or not? Anika, can we do that? Yes, sir. Okay, so please make a note of it. आप एक काम करो, अपने नोटबुक में ये वाला फिगर ही बना लो, इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का, किसको बोलते हैं, विद मार्किंग. देखो मैंने मार्क भी किया है. ओके गाइस, जल्दी से कर लो इसको. Yes, sir. Sir, done. Done. Okay guys, that's great. Sana done. Sorry, Anika done. Anika. Yes, sir. Okay, so we should move from here, and I'm taking another part of it. Now we are going to learn about the types of angles. Okay, so just give me a moment. I will upload one image and I will show you. These are the basic things. मुझे लगता है आप लोग ये grade 6-7 में पढ़ते आए हो, ठीक है? तो मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ तो नहीं करनी पड़ी, बट फिर भी मैं एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो सना, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? What we call this one? Acute angle. Acute angle का क्या मतलब हो जाएगा? It's less than 90 degree. राइट. ये मत पता है ये बात या नहीं पता? Yes, ये sir. पता है. अनिका आपको? हाँ, अनिका, sir. अच्छा, अगर नहीं भी पता तो एक काम करो, आप ना एक मैं बस एक रफ बता दे रहा हूँ क्या करना है. आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो एक्यूट एंगल. पेंसिल, हाँ ठीक है. यहाँ पे लिखो एक्यूट एंगल, ठीक है. यहाँ पे लिखो लेस देन 90. उसके बाद लिखो राइट एंगल. राइट एंगल किसको बोलेंगे? इक्वल टू It's exactly 90 degree. 90 डिग्री, राइट. उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल. क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल. दैट It's विल गिव more मी, than 90 degree. यस, ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट. उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा अनिका? इक्वल टू
180। अच्छा देखो, ये तो देखो, ये मैं लिख रहा हूं, आप एक तरफ ये ऐसे ना इमेज क्रिएट कर लो, लाइक दिस। आप बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। जस्ट एक रैंडम रैंडम, कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली आपको बनाना हो। देखो मैं रैंडमली बना रहा हूँ यहाँ पे। कैन यू सी हाउ आई एम डूइंग हियर रैंडमली? ये क्लियर हमको बता भी देगा क्या है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज द स्ट्रेट लाइन। Can you see guys how I'm writing, how I'm doing here? हेलो। Yes, sir. ओके, इसके बाद आता है एक जिसका नाम है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? Greater than 180, I think. Yes, it is greater than 180 degree, but less than 360. 360। सो ये कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, ये वाला एंगल। देखो इसमें मैंने ये एंगल लिया है which looks like the outside, which looks like what? Outside। अगर आप इसका दूसरा पोर्शन देखोगे, so this looks like the inside। Can you see that? Can you see that guys? Yes, sir. Yes। so जो outer angle होगा उसको हम यहाँ पर, this outer angle is known as reflex angle, और ये 180 से ज्यादा होगा एंड 360 से कम होगा। इज इट क्लियर? मैं फिगर भी दिखा देता हूँ गाइस, रुक जाओ। देखो यहाँ पे फिगर में क्लियर मेंशन कर रखा है कि ये देखो राइट एंगल 90 हो गया, ऑब्ट्यूज क्लियर है। उस स्ट्रेट में क्या होता है एग्जैक्टली 180 हो जाएगा। रिफ्लेक्स में But ये sir, full yes, rotation isn't an angle, or is it an angle? फुल रोटेशन कोई टॉक कर रहा है एंगल में, so that is known as 360 degree. Okay. Okay, if they are talking in the angle, right? So अनिका नोट हो गया? अनिका? Yes, sir. I'm just writing down full हाँ, rotation. जो मैंने बताया जिस तरीके से लिखने को, आप उस तरीके से नोट करना, ठीक है? तो इसमें क्या है, नेम्स जरूरी हैं। I am done. ओके, Sir, I'm done too. यू आर डन ऑल्सो। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके बाद दो वर्ड आते हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। व्हाट आर दे एक्चुअली? Suppose that, okay, I will take the figure. That would be better for you. Give me a moment. यहां तक नोट कर लिया ना आपने? बोथ ऑफ यू? ओके, ठीक है। चलो मैं एक वर्ड में यूज करने जा रहा हूँ गाइस, जो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट वन। गिव मी अ सेकेंड। Okay, okay, yeah, I will take out this. Okay, hold a moment, just taking. Okay, guys, can you see something on the board? हेलो। Yes, sir. ओके, देखो ये मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली मैंने क्या यहाँ दिखाया है। देखो पहले मेरे पास एक लाइन थी ए ओ बी, ठीक है? ये क्या था, एक लाइन था। और दिस कंप्लीट एंगल, कैन यू सी माय ब्लैक कलर कंप्लीट एंगल? This complete angle was about, that means the angle AOB
was 60 degree. I am considering how much it is, 60 degree. Okay, now I have OD or OC, you can consider. I have taken OC as a bisector. What I have taken? OC as a bisector, right? So if OC is a bisector, what do you mean by bisector? What do you mean by bisector? Bisector will divide the angle. Can you hear me? Can you hear me? Divide the angle into two equal parts. If we are talking OC as a bisector, so bisector will divide the angle into two equal parts. So आप ये देखो, एक पार्ट ये हो जाएगा, right? और एक पार्ट ये हो जाएगा. तो टू इक्वल पार्ट्स में कहने का मतलब कि टोटल ब्लैक कलर was 60 degree. Total AOB is 60 degree. So angle AOC will become how much? That will become 30, and angle BOC will become how much? 30 degree. So this will become 30 and this will become 30. So when you will add them together, so the complete black color will give you what? 60 degree. So that's why we can say OC is the bisector of AOB angle. Is that clear with you? What is the OC mean? What does it mean bisector? Yes, sir. But so what have you written here? कहाँ पर बताओ? Is it is or as OC dash a bisector? No, OC मैंने okay dash नहीं है वो, मैंने बस represent के लिए लिखा था. You can remove that. Okay. वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था. यहाँ लाइन मैंने क्या लिखी? I will just write it down. OC as a bisector. मैंने ये लाइन सेंटेंस लिखा. फिर मैंने बाइसेक्टर का डेफिनेशन दिया कि बाइसेक्टर क्या काम करेगा. सो बाइसेक्टर विल डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब ये जो एक एंगल था, देख रहे हो यहाँ से यहाँ AOB, तो अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो ये AOB को डिवाइड कर देगा टू इक्वल पार्ट्स में. तो AOB को डिवाइड करेगा, मीन 60 डिग्री था AOB मैंने माना, सो 30 में डिवाइड कर देगा. क्लियर है अभी? अनिका, सना क्लियर है? What does bisector mean? Yes, sir. Okay, चलो हाँ, क्योंकि अभी हमें क्या है, कुछ वर्ड्स हमें जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है. सो बाइसेक्टर हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं यहां से कि एंगल AOC is equals to angle BOC and both are equals to half of AOB. Can we say that or not? Yes, sir, we can. Yes, so आप इसको भी नोट कर लेना. तो बाइसेक्टर क्या करेगा कि हाफ में डिवाइड कर देता है, एंड विद डायग्राम ऑल्सो. Done. So. Done? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Done. Done? Okay, ठीक है. ओके, चलो कोई नहीं, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अभी एक बात बताओ, रामायण तो देखी होगी आप लोगों ने? हेलो? यस सर. रामायण देखी है सना? सर सुनी है, देखी एग्जैक्टली नहीं. हाँ सर सुनिए. अच्छा चलो ठीक है, देखी सुनी है जो भी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. उसमें राम और लक्ष्मण क्या थे? ब्रदर्स. दे आर ब्रदर्स. अगर क्या हम सिर्फ रामायण में सिर्फ राम की बातें सुन सकते हैं क्या? इफ देयर विल बी, तो लक्ष्मण तो होंगे ही, राइट? और जहां लक्ष्मण होंगे वहां पर राम होंगे. मतलब ये दोनों वर्ड्स जो हैं, राम और लक्ष्मण, ऑलवेज साथ साथ आते हैं, कभी अलग अलग नहीं आते.
देखा है ना या नहीं देखा, बताओ। आते हैं, सिर्फ ओनली राम मैरिड सीता, लक्ष्मण डिडंट मैरी सीता। तो नहीं, वो तो एक अलग, मतलब दोनों भाई के बारे में बात करें तो राम लक्ष्मण दोनों भाई के बारे में यूज किया जाता है, राइट, ब्रदर्स के बारे में, करेक्ट। हेलो, यस सर। ओके। उसी तरीके से हमारे पास भी दो ब्रदर हैं यहाँ पे, हमारे पास भी क्या है, दो ब्रदर्स हैं हमारे पास, जिनको अभी हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। So just give me a second. I'm just going to representing brothers here. Give me a moment. आप एक काम करो, आप give me a moment. मैं आपको बस एक बार दिखाने जा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। So just uploading here. Okay. Oh, sorry. I think it will. I need to take the image of that. Okay, no problem. Give me a moment. Okay, both of you can see something on the whiteboard. yes sir. What I have shown you. Complementary angles and supplementary angles. Okay, complementary angles and Complementary and supplementary. okay, complementary angle मैं बता दूं बहुत simple सा है। देखो, एक दो एंगल होते हैं, two angles that you add and they come up to be 90. right, so you can consider that in the two angles की बात करते हैं यहाँ पे, एंगल A and एंगल B। तो complementary angle उन angles को कहेंगे which makes 90 degree, and supplementary angle उन angles को कहेंगे angles that add up to make 180 degree. 180 degree। दोनों को ऐड करेंगे, so we can say that they are supplementary angle। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। Suppose that I have angle A is 60 degree। What I have taken? Angle A is 60 degree। Somehow supplementary of A, if they says that supplementary of angle A is what? So supplementary of angle A is angle B and that will be 120 degree, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमको we will 180 subtract 60 from 180. करेक्ट, राइट। सो अनिका, डू यू अंडरस्टैंड? अगर दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो 90 आ जाएगा, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड इफ दे आर कमिंग 180, so both the angles will be known as supplementary। उनका नाम बोलते हैं बस, ठीक है। एक करो, ये नोट कर लो, मैं क्वेश्चंस आप लोग को दिखाऊंगा तब आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है सभी को हर चीज? यस सर। चलो, अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। नोट कर लो फटाफट। अनिका, डन? No, sir. I'm just drawing the image. ओके, इमेज ड्रॉ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आफ्टर द क्लास, ओके। Then I'm done, sir. I've written down the हाँ, पीडीएफ जो है वो आफ्टर द क्लास आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। आप लोग जो छूट गया उसको नोट कर लेना, जो मतलब इसको फाइल भी कर लेना अपने पास कि ये क्लास की नोट्स हैं, राइट। ओके, शैल वी प्रोसीड नाउ? यस सर। तो देखो, हमने कुछ चीजें इस आज पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक तो पढ़ा हमने व्हाट इज द एंगल, सो द एंगल इज बिटवीन द टू लाइंस, द स्पेस बिटवीन। और एंगल कैसे करते हैं वो भी देखा हमने। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये देखा हमने, राइट। उसके बाद हमने टाइप ऑफ एंगल्स देखे। टाइप ऑफ एंगल्स में एक चीज मैं बता दूं, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला है ना, अनिका, कैन यू हियर मी? हाँ सर।
ये स्ट्रेट लाइन, कैन यू सी दिस? Yes, sir. याद रखना, straight line always gives how much? 180. 180. So it can also be called supplementary. Yes, you can also सप्लीमेंट्री कब होगा? जब इस पे दो एंगल्स आ जाएंगे ऐसे, मान लो ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन एंगल ए, तो हम बोल सकते हैं बी इज द सप्लीमेंट्री ऑफ ए, या दूसरा हम बोल सकते हैं ए इज सप्लीमेंट्री ऑफ बी। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण राम का भाई है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए इज सप्लीमेंट्री ऑफ बी And B is supplementary. एंड बी इज सप्लीमेंट्री ऑफ ए। अंडरस्टैंड? सेम वैसे ही यहाँ पर अगर कोई एक एंगल बनाता है, एंगल ए और एंगल बी, सेम तरीका यहाँ भी यूज करेंगे। ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी एंड बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। A. मैंने भाई का वर्ड इसलिए यूज किया कि अगर हम बोलेंगे कि राम लक्ष्मण का भाई है, तो लक्ष्मण भी राम का भाई है ना। Yes, देखो sir. दोनों वर्डिंग्स पे ध्यान दो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। राम लक्ष्मण का भाई है, राइट? तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? लक्ष्मण राम का भाई है। तो वैसे ही यहाँ पर A इज कॉम्प्लीमेंट्री टू B And B is complementary to A. A, और अगर हम बोलते हैं A इज सप्लीमेंट्री टू B, तो B इज सप्लीमेंट्री टू A। अंडरस्टैंड? और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, राइट? क्लियर है? I have a doubt. Yes, In a go ahead. straight angle, where will point O lie? Okay. If we don't draw like a bisector, then where will point O lie? नहीं, मैंने बाइसेक्टर कहाँ ड्रॉ किया है? सर आपने इस इमेज में स्ट्रेट एंगल के ऊपर आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। नहीं, that is not a bisector. Bisector will give you equal part. Okay, so what is this? Is it Just I have drawn to define two angles, angle A and angle B. You're trying to show the supplementary angle through this, right? Yes, I am trying to show the supplementary angles. right? Okay. Bisector नहीं होगा. Bisector अगर यहाँ पे होगा, अगर straight angle में bisector, so bisector will tell you this angle, this. Can you see the yellow one? Yeah, because it is equally divided. Because then it will make 90-90, right? So agar, then you can say this yellow is the bisector of a straight line, right? लेकिन जो red वाला मैंने line बनाया था, that is not the bisector, that's representing supplementary. और मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि याद आप लोग को ये रखना है कि if you have a straight line, can you hear me? Yes, sir. If you have a straight line like this, और यहाँ पर मैंने मान लिया center O, या क्या मान लिया? Center O, and then after that I am just drawing lines like this, line like this, and line like this. Can you see the lines? Yes, sir. And if I say this is the angle A, this is the angle B, this is the angle C, this is the angle D. How many angles I have taken? 4. So 4 angles I have taken, right? So if I have taken the 4 angles, so on the straight line, this is OA, okay, I will write down. AOB is the straight line, right? Black color. So if you sum all the angles, it will make how much? It will make 180 degree. Straight line always 180 degree देता है. Is that clear, both of you? Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को याद रखना, चाहे कितने भी एंगल्स हो, यहाँ पर वो 10 एंगल क्यों ना ड्रॉ कर दे, मैंने यहाँ 4 ही ड्रॉ किया है, बट इफ दे ड्रॉ द 10 एंगल्स, does not matter, if you add them together it will give you 180 degree. इस चीज को याद रखना है पूरे चैप्टर में. अगर ये चीज याद रहे ना, पूरा चैप्टर बन जाएगा आसानी से. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो हमने मैं वापस से आता हूँ, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ एंगल देखा था, राइट? Yes. उसमें रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, राइट? उसके बाद हमने यहाँ पर बाइसेक्टर देखा. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर Divide the angle into 2 equal parts. यस, अगर मेरे पास 120 डिग्री AOB बनाता है और बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो बाइसेक्टर विल मेक 60-60, राइट? And then we have complementary. Complementary we will add them together 90 and supplementary make them 180. और यहाँ पे मैंने ये बताया कि on a straight line sum of all the angles makes 180. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बताओ.
No, sir. Anika, No. do you have any problem? No, sir. चलो अब हम फिर क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं, और अगर इतना चीज मालूम हो गया ना तो आधा चैप्टर तो ऐसे ही फिनिश हो गया इसमें, ठीक है? सो लेट्स वर्क आउट विद समथिंग. आई एम जस्ट टेकिंग वन प्रॉब्लम एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू. क्लियर है? चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm just moving ahead. I'm taking one problem and I will tell you what to do. Okay. जरा सा इस क्वेश्चन को रीड कर करिए. Read loud. Find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement. So complement means 90 degree and it is 24 more than its complement. Okay. So I'm assuming we'll add 24 to 90. 90 is equal to 24x. नहीं 24. देखो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम है, राइट? So हमें थोड़ा यहाँ x पे plus 24 is equal to 90. नहीं 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 नहीं, रॉन्ग. x प्लस, हेलो, X plus 90 हम्म plus x हम्म is equal to 24. No, I think. So it can't be plus because 24 is less than 90, of course. देखो मैं एक चीज बता देता हूँ. देखो यहाँ पे जरा क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं फिर, ठीक है? मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जरा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले. कहता क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल. हमें एक एंगल निकालना है, राइट? which is 24 more than its complement. 24 more than its complement, right? So let's take an angle. X is equal to the complement. Wait, let's take a angle is x. So x is equal to 90 plus 24. Wait. हमने x ले लिया एक एंगल, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90. 90 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. If suppose that X plus 24. if suppose that I have taken x is this angle, so this angle will become how much? This angle will become 90 minus x. yeah. यही होगा ना जी? Yes, sir. Okay, so the complementary angle will be 90 minus x, correct? Yes, sir. अच्छा, Yes. दोनों में डिफरेंस कितने का है? What is the difference between them basically? क्योंकि 24. more than 24 कहता है, right? So हम यहाँ पे डिफरेंस अगर हमें लिखना है, so we can So write x minus bracket 90 minus x is equal to 24. good, perfect. So आप इसको सॉल्व करो. So x minus 90 और ये माइनस माइनस प्लस x is equals to 24. So 2x minus 90 is equals to 24. So 2x और ये 90 राइट हैंड साइड चला जाएगा हमारे पास, राइट? So 2x is equals to कितना हो जाएगा? 114, करेक्ट? So यहाँ से अगर हम देखें, so 2x is coming 114, so x will become here 57. So 57 तो एक हो गया, राइट? Yes. तो हमें x ही निकालना था. क्लियर है कैसे करेंगे इसको? X is 57 and then we can find so the complementary angle will be 90 minus 57. Right, correct. Understand? Yeah. Okay. No, So noted the down. complementary angle is 33 if I'm Okay, fine. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये हो गया ना डन? कोई इसमें डाउट किसी को? सना, No. अनिका? Sir, I didn't understand how we formed the equation. अच्छा. Can you read this part? Okay, I will use yeah. Can you read this part?
which is 24 degree more than its complement. तो मैंने एक एंगल निकाला, दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों के बीच में ये 24 ज्यादा है ना, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्वेश्चन में बोला, तो मैंने ज्यादा है, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल ए को और एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा मुझे या नहीं मिलेगा, बताओ। यस सर। तो मैंने देखो, मैंने समझाने के लिए यहाँ ए और बी लिखा है, आप लिखोगे नहीं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए भी लिखा है चीज, ठीक है। तो दोनों एंगल्स के बीच में कितने का डिफरेंस आया था, 24 का, तो मैंने वही 24 लिख दिया, और ए की वैल्यू हमने x मान लिया, देखो यहाँ x माना ना ए के जगह पे, और Yes. b के जगह 90 माइनस x माना, तो वो दोनों लिखकर 24 थे, उसको इक्वेशन बना दिया, देखो सब इक्वेशन बना हुआ है। क्लियर है अभी? Yeah. कोई डाउट है इसमें? No sir. ओके, कुछ भी हो तो मुझे बताओ, नो प्रॉब्लम। ओके, आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में। Okay, Anika, please read this problem carefully. Find the measure of an angle which is 32 degree less than its supplement. Okay, so देखो, स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या बोलता है? It's the same question. It's Wait. Measure an angle which is 32 less than its supplement. Supplement से छोटा है, जो x है वो किससे छोटा है? सप्लीमेंट से छोटा है, और कितना छोटा है? 32 डिग्री, राइट? So we can assume the supplement to be x. नहीं, हम एंगल को ही x मानेंगे। Sorry, angle को x मानेंगे, supplement को 180 minus x मानेंगे। Right. So let's take an angle. Let's take an angle bx. So supplement angle will become how much? 180 minus x. Supplementary angle will become here 180 minus x. अनिका कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अनिका? No sir. अच्छा, अब देखो कौन बड़ा है इसमें, तो खुद बता रहा है कि एंगल जो लिया आपने वो 32 डिग्री छोटा है किससे? सप्लीमेंट से। स्टेटमेंट पढ़ो, एंगल जो है वो 32 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट है, तो कौन बड़ा है? सप्लीमेंट बड़ा है या ये एक्स बड़ा है, बताओ अनिका। सर एक्स कैसे बड़ा हो जाएगा? खुद स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि एंगल other supplement is larger than the angle by 32 degree. Yes, तो हम इक्वेशन लिखेंगे ना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 minus x will be equals to 32 degree. लिख सकते हैं हम? Yes. अनिका, can we write like this? Yes sir. नहीं, कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर बताओ। Sir, I think I got it. Got it? क्योंकि सप्लीमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया, सप्लीमेंट बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 32 डिग्री बड़ा, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया इसको। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, सो आ जाएगा 180 minus x is equals to 32. So ये 180 minus 2x is equals to 32. So let's work out. So 180, ये 32 इधर आ जाएगा, so we can write down minus 32 and 2x हमारा इधर चला गया। कोई प्रॉब्लम? So let's work out more. So 180 minus 32 will become how much? 148. 142. 148, 42 नहीं होगा। Okay. 148, yeah. So 148 divided by 2 is equals to x. तो ये हो जाएगा 74. So the value of angle is 74 degree. Yeah. So supplement is 74. नहीं, supplement 74 कैसे हो जाएगा? Angle is 74, so supplement will be 180 minus 74. Okay. So supplement is 180 minus 74, that will be 106. Clear है अनिका? Yes sir. I think it's clear for now. नहीं, I think it's clear. तो डाउट कहाँ है, मुझे भी पूछो। So first we took the angle which we have to find Yes. as x, Right. and then we wrote the statement that supplementary angle is equal to 180 minus. देखो मैं फिगर में बता देता हूँ, मैं फिगर में करके बताता हूँ।
देखो एक एंगल लिया हमने x, ये एंगल ले लिया x। सप्लीमेंट क्या बोलता है कि बोथ द एंगल्स मस्ट बी एडेड एंड दे मस्ट गिव यू 180, राइट? Yes, sir. तो पूरा एंगल 180 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मुझे आप बताओ। ये वाला पार्ट होगा 180 minus x. राइट, सो 180 माइनस एक्स ये ले लिया, राइट? अब दोनों क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये हो गया एक एंगल और ये हो गया 180 माइनस एक्स इज द सप्लीमेंट ऑफ एक्स। अब दोनों के बीच क्या कहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 32 का डिफरेंस है, राइट? Yeah. अभी क्लियर है? हाँ सर, आप समझ आ गए। Okay, so we are moving ahead. Fine. So let's work out. चलो एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है ये। ओके गाइस, सो इसको जरा रीड करो, क्या कहता है। प्लीज रीड इट फास्ट। हेलो, So should I read? यस अनिका, प्लीज रीड इट। Find the measure of an angle if 6 times its complement is 12 degree less than twice its supplement. ओके, अब देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। Find the measure of an angle. Angle is x, I think. So let take Line be x. an angle be x. कोई प्रॉब्लम अनिका इसमें? अनिका, अच्छा, अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा मुझे बताओ अब। 90 minus x. ओके, एंड x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 minus x. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने लिख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल भी मैंने लिख लिया यहाँ जी 180 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? No sir. अच्छा, अब अनिका एक काम करो, जरा ये वाला पार्ट पढ़ो, ये क्या बोलता है, बस इतना रेड मार्क। Is 6 times its complement. That is 6 हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। into 90 minus x. तो 6 टाइम्स 90 माइनस एक्स, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इक्वेशन लिखता हूँ, देखो कैसे। 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स, ओके? हाँ. एज क्या है यहाँ पे? एज, Is एज लिख दिया। फिर बोलता क्या है, ये पढ़ो, 12 डिग्री लेस देन supplement. ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो क्या करना पड़ेगा? 180 minus x minus 12. माइनस 12, दिस इज द इक्वेशन। Okay. सना, आर यू क्लियर? सना, Yes, sir. ये इक्वेशन कैसे आया, आप मालूम चला आपको या नहीं? समझ में आ गया सर। ओके, तो चलो वर्कआउट करते हैं गाइस। क्या आप लोग, अच्छा क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो क्या खुद से इक्वेशन को? Yes sir. चलो ठीक है, काम करो, दोनों लोग पहले खुद से सॉल्व करो इक्वेशन, तो मैं बताऊंगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए। देखो मैंने इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, और अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा लिख दूं क्या इक्वेशन? अनिका, Yes. सना, इक्वेशन क्लियर है क्या लिखा है यहाँ पे? Yes. तो चलो आप लोग काम करो, आप लोग खुद से जरा अभी सॉल्व करो और मुझे x की वैल्यू बताओ, देखता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं करते हो इसमें भी। तो देखो ये नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट? और ये आप लोगों ने ग्रेड 6-7 में किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन और लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। Sir, is it 48? Yes, you are right. The value of x is 48 degrees. Okay, guys? Sana, Yes, sir. do you get the same? Yes, sir. Or should I solve it? Tell me. Batao, solve. No, sir, I got it. Got it? So the value of x, we got it here as 48 degrees.
So this will become here 48 degree. Clear hai? Anika, is this clear? Yes, sir, it's clear. Okay, ठीक है. चलो अच्छी बात है. Okay, okay. Giving you one more problem, and let's this time you both of you will do this. Okay, I will not solve. So just uploading. Can you go for this problem, please? Yes, sir. Two supplementary angles are in the ratio So, 3. sir, in this, does this mean like 3? So, for example, if the angle is x, Right. and does that mean 3x plus 2x is नहीं नहीं, देखो इसमें सिंपल सा बता देता हूँ, एक कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब हो गया कि एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल बी है. दोनों सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, राइट? yes. तो एक को अगर हम मान लेते हैं, एक जो है वो 3x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. And accordingly they are supplementary. So they equal to yeah, that's what I was trying to ask. Are they equal to 180? So we can write 3x 3x plus 2x is equals to 180 degree. So from here 5x is equals to 180. So 180 divided by 5 कितना होगा, निकालो जरा. So 180 divided by 5, that's coming here 36. So jara check kar lo, 3 times 36 is how much, and 2 times 36 is how much. So this is 72, and I think this is 18 108. Clear? Is that clear? Both of you guys? Yes, sir, it's clear. Yes, sir. Okay, एक क्वेश्चन और है, जरा आप इसको सॉल्व कर लो. सो हमारा एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा. चलो इसको कर लो जल्दी से. Go ahead, do it. Do it fast, guys. दोनों शांत. आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो Anika, Sana, can you hear me? Sir, I can hear you. Sana? So even I. Okay, तो सब शांत हो गए थे. Okay, ठीक है, चलो. Sir, x is equal to 20. नहीं, कौन सा? X. X, हाँ, तो मुझे एंगल चाहिए ना, एंगल बताओ आप. Okay. I need the angles. They are asking find the angle. A is 80 degree and B is 100. Wrong. Complementary है. Oh, complementary. देखो complementary है. तो यहाँ पे angle x is equal to 10. Okay, good. So you can see A plus 40 and 80 are the correct. two. Sir, 10. 40 and 80 नहीं, 40 and 50 होगा. Sorry, yeah, 40 and 50. He said 80 by mistake. Okay, so you can see here it's coming here 90. So 9x is equals to 90. So x is equals to 10 degree. So ये हो जाएगा 4 times 10, that is 40 degree, and 5 times 10, that is 50 degree. I mean 50, sorry. Right? कोई problem? No, sir. अच्छा, तो आप लोग एक काम करो, होमवर्क जरा नोट करो आप लोग. दोनों के पास आर.एस. अग्रवाल है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जरा एक बार आर.एस. अग्रवाल निकालो अपनी. उसमें चैप्टर नंबर क्या दिया हुआ है, 4 है या क्या है, चेक करो. सर आप बता दो, इसमें बहुत ज्यादा ही इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है. क्या
R Sagar is very confusing. नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, आप निकालो सही, ठीक हो जाएगा। निकाल लिया अनिका? Yes, sir, I have it with me. ओके, चैप्टर नंबर क्या है? It's lines and angles only, 195. हाँ, It's lines and angles only on page number 195. नहीं चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर Lines and angles. Chapter number 4. Lines and angles है ना. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 4 है ना, उसमें Yeah. देखो एक्सरसाइज But sir, in mine it's chapter number 7. Sir, it's chapter number 7, but it is under geometry, which is chapter It number comes 4. under geometry, but there are different units under geometry. Under Yeah, that, like चलो कोई नहीं, आप लाइंस एंड एंगल्स यूज करना। लाइंस एंड एंगल्स में देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक्सरसाइज कितना दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक, okay. बिकॉज आई हैव माय ओल्ड बुक विद मी। आप एक काम करना, नहीं तो there's an exercise like the first one. It is 7A. The first question is define the terms. Second is find the complement of each of the following angles. The third is find the ओके सेकंड Sir, even the second exercise is easy, kind of. नहीं, The first सेकंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। in the adjoining figure, AOB is a straight line. अच्छा Find ठीक the है, value of ठीक है, अब एक x. काम करना, आप लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप लोग कंप्लीट करना पूरा। The Okay. first exercise में first question is define the terms. वो भी करना है. हाँ, नहीं वो छोड़ देना, वो कोई इशू नहीं है। So what about the examples? नहीं आप एक्सरसाइज कर लो इसमें, ठीक है। आई विल टेल यू कब एग्जांपल्स करना है। So only 7A, right? Only Okay, so 7, just have to yes, say- only And 7, decide the first question. yes, only 7A is your homework, okay? Yes, sir. Yeah. उसके बाद जो है, एक सेकंड, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। ओके चलो 5 मिनट्स है मेरे पास, मैं एक चीज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जरा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। Okay, sir. मैंने एक थ्योरम बताया था, उसको कहते हैं थ्योरम, राइट। द थ्योरम सेज दैट इन द स्ट्रेट लाइन इफ यू हैव many angles at one point, can you see the one point we have Yeah. many angles, right? They will still add up to 180. How many angles there are? Like whatever. कितने भी हो, Then they'll add up to 180. right, कितने भी angles हो, doesn't matter, if we On a add them straight line, together, add up to 180. yes, if we add them together, so it makes 180 degree. Clear है सानिका? Yes, sir. Sir, it's called theorem, right? There's no name, right? नहीं, नाम नहीं है, थ्योरम है, ठीक है। लेकिन हमें थ्योरम याद करने की जरूरत, थ्योरम कभी पूछता भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। और दूसरा ये है कि when two straight lines cross each other, when two straight lines will cross each other, so can you see they are crossing each other? Can you see that? Yeah. So at the point of intersection, they will make some angles, right? Are you getting this angle? Yeah. They'll be same. They will be same to each other, vertical opposite angles. Yes. And are you getting this angle? Yeah, they are also VOAs. So Anika, if I give the name here AB, and if I give the name here CD, and I give the name O here, so we can say vertically opposite angles, Opposite angles. So sir, it only happens when the two lines are intersecting each other. So in that case, the opposite angles are same, right? Only when intersection happens. Yes, only when the intersection will happen, then it will be possible, right? अब देखो एक चीज मैं इसमें बड़ी कमाल की चीज दिखाता हूँ जी, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, ये एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री। कितना ले लिया मैंने?
30 degree. कोई मुझे बताएगा एंगल AOD कितना हो जाएगा? Angle AOD 30. will be 30. हाँ 60. No, sir, it'll be 30. 60. रॉन्ग 60. मैंने बी 180 minus 30, we'll do that. yes because both of Yeah. you has not seen this part. I It know. makes So it we will like do 180 straight minus line. 30, and whatever the answer is, that will be O. Right. So यहाँ पे देखो नहीं O नहीं एंगल O नहीं है ये मैंने इस पॉइंट का नाम O दिया है. Yes, sir, I know, but वो AOD बनेगा और COD वो दोनों सेम होंगे. Right. Anika, do you clear? ये straight line भी तो बनाएगा ना? Yes, sir. So it is 180 degrees. So we subtract. So we can say it 150. And according to our theory, vertically opposite angles must be equal. So angle AOC will become also 30 degree. Yes, sir. And angle BOC will become 150 degree. Yeah, and together it makes a 130 degree. I mean 360. 180. और एक काम देखो यहाँ पर एक चीज देखो गाइस बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना. Is it making a circle at this point? Yes, Yeah, sir. so 360. सबको ऐड कर दो सर्कल बनाएगा तो बनेगा. 360 आ जाएगा. क्लियर है गाइस? Yes, sir. तो चलो एक काम करेंगे हम लोग. आप इस पर थोड़ा एक क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए. ठीक है? Is it clear, Anika? Anika, can you hear me? Yes, sir. It's clear. Okay, don't worry, I will take only 2 minutes extra. Can you see this figure now? Yes, sir. Yes, So sir. in this figure, if you see here, this AOB makes a straight line. Yes, sir. 180. अच्छा इस पर straight line यहाँ पे देखो यहाँ पे point भी O है, right? So if I say that जिसको बोलेंगे X को बोलेंगे angle AOC. क्या बोलेंगे? AOC. अच्छा 65 डिग्री को बोलते हैं COD. नेमिंग करना मालूम है कैसे करते हैं नेमिंग? देखो मैं नेमिंग करना सिखा देता हूँ. यहाँ पे नेमिंग करते हैं. ये C है COD. तो ये 65 को हम क्या बोलेंगे? I COD. can't repeat DOC. E कहाँ पे है? E कहीं दिख नहीं रहा मुझे. Sir, on what basis do we make these angles? Like, as in, why is it not DOC? Like, why is it हाँ C? आप नहीं आप DOC लिख सकते हो. You are right. DOC is also. अगर आप चाहो तो लिख लो DOC. आपकी मर्जी. नो प्रॉब्लम. नेमिंग्स में आप अपनी मर्जी चला सकते हो. कैन यू हियर मी? अनिका कैन यू हियर मी? Yeah. हाँ नेमिंग में आप अपनी मर्जी चला लो कोई दिक्कत नहीं. नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसको क्या लिखेंगे हम लोग गाइस? DOB लिख लो या BOD लिख लो जो मन है लिख लो. That must be 180 degree. Yeah. So 65 plus X plus. So X plus 65 plus 2X minus 20 is equals to 180. Yeah. So तो जरा 3 सॉल्व कर लो. ये हो गया जी 3X plus 45 is plus equal to 45 is equals to 20. Sana, are you getting point? Yes, sir. 3X Okay. is equal to 3X is equals to 180 minus 45. 135. So 3X और ये हमारा 50. So 135. So X will become here how much? 45. 45, yes. So X will become here 45. 45. So now the X is 45. So we can say angle AOC Is is 45. 45. And B DOB is 2 into 45 minus 20. right, correct. So 90 minus 20. That is equals to 70. 70. चलो तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना स्ट्रेट लाइन वाले वो ट्राई करना. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे गाइस 7B में. तो जितना हो सके उतना बनाना कोई दिक्कत नहीं. मैं कल की क्लास में इसमें और भी चीजें आपको बताऊंगा. तो 2 चीजें याद रखना. स्ट्रेट लाइन 180 देता है राइट. वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं और अ फुल सर्कल गिव्स मी 360 डिग्री. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. चलो ठीक है. तो हम लोग कल मिलते हैं और आप लोग कल की क्लास एटलीस्ट 2 मिनट्स पहले ज्वाइन जरूर कर लेना. ठीक है? Okay, sir.
Yes. Yes. Okay. Yeah, tomorrow it's at 10, right? Yes, tomorrow 10 o'clock in the morning. So can you share the PPT? हाँ मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को थोड़ी देर बाद पीपीटी व्हाट्सएप पे भेज PDF में भेज देना। हाँ सॉरी पीडीएफ ही मिलेगा, पीपीटी नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको, क्योंकि पीपीटी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जाती है, तो मैं आपको पीडीएफ। पर वो खुलती भी नहीं है मैक में तो नो प्रॉब्लम, यू विल रिसीव द पीडीएफ. अनिका, पीडीएफ इज ओके विद यू? अनिका, Yes, sir. It's ओके fine. ओके, सो पीडीएफ मिलेगी गाइस, डोंट वरी. ओके या यस सर। एंड आफ्टर ये भी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. आई थिंक यू सब्सक्राइब टू द चैनल और नॉट, या मुझे भेजना पड़ेगा फिर से? हेलो, So I can find the So we channel. will subscribe. ओके हाँ आप कर लेना, क्योंकि क्या है ना कि बार बार मैं तो डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ और उस चैनल पे बहुत डिफरेंट चीजें भी अपलोड हो रही हैं गाइज, फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट कोई फन के लिए नहीं है, एजुकेशन पर बहुत सारी चीजें हैं, तो आप चैनल में जाके भी देख सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. बट मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि हर वीडियो शेयर करना मुझे पॉसिबल नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो. That will be good. Yes, I sir. have pinned the channel instead of like subscribing to have pinned it. So like अपना बात. हाँ यस ओके ठीक है गाइज, ओके बाय. सो मैं आप लोगों को शेयर Sir, कर, bye. ओके बाय.